Hello guys, welcome back to my channel. I'm Manish, a second professional BMS student from Bharat Ayurved Medical College Hospital and Research Center. Uh, I cleared my first professional examination with flying colors, so I think I'm the rightful person to make this video on tips and tricks about your professional examination, which will help surviving those 3 essential hours of examination. And I can also provide you some sort of points which will help you in your exam to succeed. And moving on to the first subject, I would first like to tell you about your Sanskrit paper, which is going to be your first paper on 6th of September 2024. Since we are talking about Sanskrit, as you all know, it is very tough for the newcomers, especially who have never touched Sanskrit in their life. And it was tough for me as well to manage Sanskrit in my first year, but I did it, and I can surely provide you some sort of help in Sanskrit. My suggestion would be to clear firstly the main topic is lakar. You can mug up the lakar topic with some tricks like tita, anti, si, tha, tha. With that, you can finish all 5 lakars. You will easily get sorts videos in YouTube which will make you learn these lakar very easily in just few minutes. You can I learned all the lakars in minimum half an hour, I remember. So yeah, you can do as well. I would recommend you to watch the shorts video in lakar, and you will easily get through it. And after that, I would often like you to learn about Shabdroop, because these 3 or 4 topics cover a large chunk of numbers in the examination. You should do Shabdroop as well, and then you move forward to Sandhi and Samas. I would specifically pinpoint on the sutra of Sandhis and Samas as well, because question comes directly from the sutra, like the Eko Yanchi sutra for Yan Sandhi, and for Samas as well there are specific sutra of different samas which you can learn, which will often help you to solve the samas given in the paper. So yes, please do Sandhi and Samas as well. It contains around 10 to 15 numbers as far I remember. So after that, I would also recommend you to do a pratyahar, which is very important again, and that is very easy. If you have learned Maheshwar Sutra, you can easily find pratyahar from the Maheshwar Sutra in of respective first, second, and 14, all the 14 sutra of Maheshwar Sutra. That will be very easy. You can often do pratyahar. Then talking about MCQ, I think you will surely get some sort of help in the examination all by your batchmates. So make sure you do most of the MCQs correct, because that will increase the chances of passing in your examination. And then I would most importantly recommend you to just fill your answer sheet completely, not exactly filling your examination sheet, I mean just make sure you don't leave any question in the answer sheet, or because filling is important. I will tell you why filling all the answers important. आंसर भरने का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें गाने भी लिखाओ. मेरा आंसर भरने से ये मतलब था कि आप रिलेटेबल चीज़ें लिखो. और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एज़ फार माई नॉलेज बीए और एमए वाले संस्कृत टीचर्स को जो हमें पढ़ाते हैं यूजुअली कॉलेज में, उन्हें अलाउड नहीं होता पेपर चेकिंग करने के लिए. एमडी और एमएस जिन्होंने किया होता है, जो हमारे अदरवाइज टीचर्स होते हैं एक्सेप्ट संस्कृत, अदर्स सब्जेक्ट के, जैसे संहिता एंड सिद्धांत के हमारे जो प्रोफेसर, और जो हमें चरक संहिता और वगैरह बाकी टीचर जो होते हैं, उन्हें ही बिठाया जाता है फॉर पेपर चेकिंग. सो उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती संस्कृत की. सो वो उन्हें बस चेकिंग के लिए बिठाया जाता है और वो चेक करते हैं अपना काम. और इस वजह से ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ जो बच्चे होते हैं वो संस्कृत में पास हो जाते हैं. सो इस वजह से हो सकता है सामने वाला बंदा जो भी आपका पेपर चेक कर रहा हो सकता है वो एमडी एनाटॉमी हो,
और हो सकता है वो MD क्रियाश्री हो, तो उसे उतना संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस एक ड्यूटी दी गई है आपकी पेपर चेकिंग करने की, और वो करेगा और फिर उठ जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है कि उसको उतना संस्कृत आता हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो टॉपिक नहीं आता हो उसको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो। सो येस, संस्कृत इज़ नॉट वेरी easy and not very hard as well if you do it by heart, and if you give your 100% to learn the lakar and everything, you can easily pass your Sanskrit paper. And talking about the second paper of Sanskrit, which consists of Ayurveda Itihas and then the literature portion of Sanskrit, I would recommend you to like go through the Ayurveda Itihas notes if you have it in a precise manner, which will help you to do the MCQs of Ayurveda Itihas, and otherwise क्लास में सर्कुलेट हो ही जाएंगे, सो आप वहाँ से भी आयुर्वेदा इतिहास कर सकते हो। एंड देन यू कैन ऑल्सो लाइक रीड द स्टोरीज, द जो पंचतंत्रम है उसमें आप पंचतंत्रम में से सारी कहानी को बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वो आपका काम हो जाएगा। उसे बस आपको मीनिंग वाइज लिखना है, जो भी मीनिंग आपने समझा है उस स्टोरी का वो आपको लिखना है। बाकी डेफिनेशंस और जो भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे जो नए ऐड हुए हैं इस बार, जैसे कि रक्त धातु का डेफिनेशन या मर्म क्या है वगैरह वगैरह, ये सब भी वन वर्ड वाले क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं संस्कृत में, जैसे जिसमें हमें डेफिनेशन लिखना होता है, जिसका हमें श्लोक लिखना होता है, तो वो सारे इजी रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। जैसे हमारे में जितने भी जो वर्ड्स आए थे जिनके बारे में हमें डिफ़ाइन करना था वो बहुत ही ईजी थे, जो हम इन जनरल आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, जैसे महाभूत हुआ, गर्भ हुआ, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत इजी वर्ड्स थे जिन्हें हम ईजिली डिस्क्राइब कर सकते थे इवन श्लोक के साथ। सो या बाकी लिटरेचर पोर्शन बहुत ही ईजी रहेगा आपका। एक थिंग जो लिटरेचर पोर्शन वाला मतलब पेपर 2 में जो लोगों को थोड़ा सताता है वो है कि अन्वय लेखन। अन्वय लेखन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, जब भी कोई भी अन्वय लेखन अगर आपके बुक में दिया हो तो वो उसी एक सेंटेंस को दोबारा फ्रेम करना ही अन्वय लेखन काइंड ऑफ है। एग्जैक्ट अन्वय लेखन मुझे नहीं आता, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट अन्वय लेखन इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, बट एज फार लाइक माई नॉलेज सेज it is reframing the same sentences with different or same words. So you can just don't leave the anvay as well. If you get that question, just reframe the sentence in Sanskrit only, and that there the anvay lekhan will be done. So yeah, talking the paper 2 is almost I have described as well. So moving on to Padarth Vigyan, I would just say that वन चैप्टर वन श्लोक इज़ नेसेसरी। आपको हर एक चैप्टर से एक श्लोक आना ही चाहिए जो कि आप टेप पाओ आंसर्स में, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे श्लोक याद हो। बाकी जो द्रव्य वाला चैप्टर है उसको अच्छे से करना, और आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसमें जो आपके क्लिनिकल एप्लीकेशन में हेल्प आएंगे, जैसे कि दर्शन के बारे में हुआ, फिर आपके जो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, फिर जो भी आप्त उपदेश, ये सब जो भी चीज़ें हमारे डेली प्रैक्टिस में काम आएंगे फॉर फर्दर आवर क्लिनिकल एक्सपोजर्स, उसको ज़रूर से करना। उससे अभी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टॉपिक। जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से करना। हमारे पेपर में भर भर के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन आए थे, तो आप भी ज़रूर करना, मैं वो सजेस्ट करूँगा। बाकी पदार्थ इज़ ऑल्सो ईजी, अगर आपने पूरे साल पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो आप इजीली पदार्थ भी पास कर जाओगे। एक टॉपिक से एक श्लोक याद करना ज़रूर, दैट विल हेल्प यू गेन सम गुड मार्क्स। एंड पेपर प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना, उससे आपकी मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज़ होती है, बहुत इंक्रीज़ होती है। सो पेपर प्रेजेंटेशन में मैं कहूँगा कि मान लो अगर आपका ऐसा पेपर आता है हमारा तो लंबा सा वो लैंडस्केप मोड पे, सो इधर ऊपर लिखना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और फिर अपना आंसर मिडिल से ही शुरू करना,
साइड से शुरू नहीं करना, और यहाँ हल्का गैप रखना, माइंड माई वर्ड्स, हल्का गैप रखना, और यहाँ भी हल्का गैप रखना। ज़्यादा गैप रखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पेज भरने की कोशिश कर रहे हो। सो मेक श्योर हल्का गैप रखना, ठीक है। बाकी आप आंसर नीचे से भी थोड़ा लाइंस छोड़ सकते हो, 1 या 2 लाइन, और ऊपर से भी 1 लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपका आंसर बहुत ही नीट दिखे, ठीक है। और बाकी रेस्ट मैं बोलूँगा कि एक आउटलाइन पहले ही बना लेना अपने पेपर को, मतलब आप पेपर कैसे लिखोगे, जैसा कि मैंने करा था। मैं यूजुअली क्या करता था, एमसीक्यू फर्स्ट 2 पेजेस में अपना एमसीक्यू ख़त्म कर लेता था। उसके बाद के जो मेरे पेपर्स होते थे उसमें मैं पहले ही एक आउटलाइन बना देता था। जो आंसर्स मुझे अच्छे से आते थे उसमें मैं 2 से 3 पेजेस देता था, जो आंसर मुझे कम आते थे उसमें मैं 1 से 1.5 पेज में ही ख़त्म कर देता था। सो ये मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है, आप चाहो तो सेम भी फॉलो कर सकते हो। आपका अगर अपना कुछ प्लान है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, एज योर विश। सो यस, पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस रखना, फ्लो चार्ज, डायग्राम्स और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, जहाँ पे भी आपको लगे, जहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी कुछ पॉइंट्स खुद से ऐड करके आना, हेडिंग डाल के, दैट दिस इज़ द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। और यस, डायग्राम, फ्लो चार्ट तो मैंने बता ही दिया। हाईलाइट्स योर हेडिंग्स, एंड जहाँ पे आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करो। और मैं क्या करता था, ब्लैक, जहाँ पे मुझे लगता था कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको ब्लैक पेन से ब्लॉक लेटर्स में लिखता था, नहीं नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में नहीं, जैसे हम लिखते हैं। जहाँ पे भी मुझे लगा, जैसे कि मैं कोई एनाटमी में कोई वो लिख रहा हूँ, मसल लिख रहा हूँ, ब्रैकियालिस, सो मैं उस ब्रैकियालिस को ब्लैक पेन से ब्लॉक लेटर्स में लिखता था इन बिटवीन माई सेंटेंस। सो वो पूरी हाईलाइट होती थी चीज़। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर को अच्छी लगती है और उससे आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। सो पदार्थ विज्ञान हमने कर लिया। बाकी अब मूव करते हैं हमारे प्रिय सब्जेक्ट एनाटमी में। सो एनाटमी में मैं सबसे पहला सजेशन जो दूंगा वो है डायग्राम का। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनाटमी में। डायग्राम के बिना पूरी एनाटमी कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर कोई भी क्वेश्चन हो एक्सेप्ट एमसीक्यू, आपसे डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, आपको डायग्राम बना के आना है। कुछ भी रिलेटेड, इवन अगर आपसे आयुर्वेदिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मर्म पूछे गए हैं, तो आप मर्म दिखा के आओ कि कौन से बॉडी पार्ट में वो मर्म पाया जाता है। जैसे कि श्रृंगाटक मर्म कहाँ पाया जाता है, पीछे पाया जाता है या सेरेबेलम के आसपास, तो श्रृंगाटक मर्म आपको वहाँ पे हेड बना के पीछे दिखाना है कि श्रृंगाटक मर्म यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पूछा गया है, मेजर ऑफ द क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे कि सचित्र वर्णन करे, जैसे जो भी टॉपिक होगा आपका, ह्यूमरस बोन को सचित्र वर्णन करे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बट अगर आपसे इन केस किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछे गए हैं तो भी आपको उससे रिलेटेड डायग्राम बना के आना है। जैसे हमारे में पूछा गया था केश दंत नख की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिखें, मैंने उसमें भी डायग्राम बना के आया था केश दंत और नख की, तीनों एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट डायग्राम बनाओ, बट बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको बना के आने हैं। मान लो आपसे ऑर्गन पूछा गया आई, सो आपको आई बनाना है वहाँ पे, भले ही आपसे डायग्राम मेंशन ना किया हो क्वेश्चन में। वैसे मेजर 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे कि डायग्राम बनाना है, पहले ही लिखा आएगा। बट अगर नहीं भी लिखा हो किसी क्वेश्चन में तो भी आपको डायग्राम बनाना है। बाकी जो टॉपिक्स मेन इम्पॉर्टेंट रहेंगे, मैं बोलूँगा गर्भ को अच्छे से देखना, और ऑर्गन्स में आप मेजरली जो जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी जो जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हुआ, लिवर हुआ, और सेंस ऑर्गन में आप आई कर सकते हो, बोन में आप ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फ्यूबुला और अल्ना रेडियस, ये सब कर सकते हो। और ऑर्गन्स में मैं बोलूँगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेनिस, वजाइना और क्या बोलते हैं, यूटरस, और उसके बाद आप कर सकते हो टेस्टिस, और फिर आप कर सकते हो लंग्स, देन आपका आ गया पैनक्रियास, देन आपका आ गया हार्ट। हार्ट बहुत अच्छे से करना, हार्ट हमारे पेपर में आया था, हो सकता है दोबारा रिपीट भी हो, मेरा फेवरेट टॉपिक है हार्ट। सो यस, हार्ट भी कर सकते हो आप। एंड देन
स्टमक से रिलेटेड हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया। इसोफेगस कर सकते हो आप, फेरिंग्स कर सकते हो आप, जो ओरोफेरिंग्स होता है ना, जहाँ पे कॉमन पैसेज होता है फॉर एयरवेज एंड फूड पाइप, मतलब फूड पाइप और वेंट पाइप जहाँ जाके मिक्स होती है, वो आप कर सकते हो। एंड देन इतने मेजर ऑर्गन्स जो भी है आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, वो सारे। लिवर कर लेना, लिवर काफ़ी सालों से नहीं आया है, सो लिवर विल बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड देन लिवर क्योंकि आती है, मेजरली लिवर पूछी जाती है, हमारे सीनियर्स भी बताते थे कि लिवर आ जाता है। फॉर पेपर 2 वही रहेगा कि आप डायग्राम अगेन एंड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, फ्लो चार्ट बनाना। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उस डायग्राम को भी आगे फर्दर पेज में एक्सप्लेन करना। अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना। टाइम ना हो तो बात अलग है, बट अगर टाइम है आपके पास तो एक्सप्लेन करना उसको भी। ऐसे ही आंसर्स लिखे जाते हैं इन जनरल। और कटिंग के ऊपर मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई वर्ड काटना है तो उसको ऐसे खिच पिच मत करना, बस एक सिंपल सा कट मारना, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। ज़्यादा खिच पिच करने पे एग्जामिनर को चीज़ें पसंद नहीं आती है, वो गुस्सा हो जाएगा और फिर आपका पेपर ही पूरा सीधा कट मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा आपने खिच पिच किया हो तो। क्रिया रचना शरीर हम देख चुके हैं, देन वी विल मूव ऑन टू क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में अपने आप बेसिक जो है वात पित्त का बहुत अच्छे से करना, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। देन धातु से भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद ओज पे आप क्वेश्चन ले लेना, ओज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड देन हो गया आपका षट क्रियाकाल, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन जो न्याय होते हैं, धातु पोषण न्याय, धातु पोषण से रिलेटेड जो न्याय होते हैं, एक काल धातु पोषण न्याय और केदारी कुल्या न्याय, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आहार विधि विशेष आयतन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। और आहार से रिलेटेड जो भी है वो सारे क्वेश्चन, अग्नि के बारे में क्वेश्चंस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आयुर्वेद के, जो आपको करने ही करने हैं। एंड देन वी विल मूव ऑन टू मॉडर्न टॉपिक्स। मॉडर्न में क्रिया मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, मैं बहुत इजी समझता था, बट मेरे एग्ज़ाम पे जब मैंने अपनी बुक मॉडर्न बुक खोली थी, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट स्टिल फॉर अ शॉर्टकट मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास NCERT है 11th और 12th की, तो आप उसी से अपनी पूरी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पढ़ लेना, आपके लिए एनफ रहेगा टू पास योर क्रिया शरीर एग्जामिनेशन फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव एज वेल। सो क्रिया शरीर भी हमने देख लिया। देन वी विल मूव ऑन टू संहिता, संहिता अध्ययन 1। सो इसमें हम अष्टांग के चैप्टर्स होते हैं हमारे 12। एंड देन उसके बाद हमारे चरक के कुछ चैप्टर्स वही 12 या कांट रिकॉल जो भी थे। सो वो चैप्टर्स आप करना। शुरुआत के अष्टांग के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। लाइक द फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम आयु और वगैरह वगैरह पढ़ते हैं वो सब। फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये भी बहुत अच्छे से करना। जहाँ पे अन्न वाला अध्याय आता है वहाँ से क्वेश्चनिंग बहुत मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है। देन उसके बाद आप बात पित्त रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे तो वो आपकी क्रिया में भी है, तो वो आपको आता होगा ऑलरेडी। चरक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेक श्योर करना कि आप चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ो। थोड़ा लंबा है बट थोड़ा टाइम अगर दोगे तो वो हो जाएगा। बाकी जो फर्दर चैप्टर्स है वो आप उमाकांत सर के नोट से पढ़ सकते हो, बड़े ही वायरल नोट्स है जो कि मोस्टली टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो मैं भी भेज दूंगा, अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं भी भेज सकता हूँ उमाकांत सर के नोट्स, वो आप पढ़ लेना। बहुत क्रिस्प और कंसाइज नोट्स है, एक दिन में आप आराम से पढ़ के जा सकते हो पूरे 12 के 12, शायद 15 चैप्टर अष्टांग के हैं, 15 या 16 चैप्टर, 12 चैप्टर अष्टांग चरक के हैं, तो जो भी है वो आप कर सकते हो उससे। और बाकी हमारा संहिता भी हो गया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं विश करूँगा कि मेजर ऑफ द जो बच्चे हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के वो पास हो और सप्ली ना लगे, क्योंकि ये जो ईयर बैक वाला सिस्टम है बहुत ही गंदा करा है हमारे साथ, बहुत ही अन्याय हुआ है। मैं टोटली अग्री करता हूँ इस बात को। मेरी खुद मतलब मैं खुद बहुत डरा हूँ अपने सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन। बाकी आप मैं बोलूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आ सकती है वो कि आप एग्ज़ाम में पहले ही एंटर करना,
ठीक है, ज़्यादा पैनिक हो, क्योंकि अगर आप लेट होगे तो आप पैनिक करोगे। सो अच्छा खासा टाइम घर से लेके निकलना, हल्का खा के निकलना, एंड देन मेक श्योर करना कि अभी इन कुछ दिनों आप कुछ भी बाहर बाहर का ना खाओ, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ये आपके लिए। एंड देन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंच के देन अपनी सीट को चेक कर लेना कि आपकी सीट हिलती डुलती ना हो, जो भी सीट आपको अलॉट हुई हो, क्योंकि वो एट द एंड काफ़ी दिक्कत क्रिएट करती है अगर आपकी सीट बहुत डिस्टर्बिंग हो तो। सो ये हो गया। बाकी अगर आपके क्लास में फ्लाइंग आती है, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल आता है चेकिंग के लिए, तो और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो बहुत टाइम ले जाती है अपने साथ। अगर ऐसा कुछ होता है और हम उन पे ध्यान देने लगते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट वेस्ट चली जाती है हमारे वहाँ। सो आपको उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आपको अपना पेपर करते रहना चाहे कुछ भी हो, और ऑनेस्ट ही के साथ ही अपना पेपर देना मैं सजेस्ट करूँगा। MCQ तक हो जाए चलो ठीक है, उससे ज़्यादा बाकी आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना किससे, अपना इतना पढ़ के जाना कि आप आराम से पास हो जाओ, ठीक है। ब्लैक ब्लू पेन के अलावा और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल इज़ ऑल्सो लाइक गुड टू यूज़, एंड देन उसके अलावा कोई कलर पेन्स वगैरह यूज़ करना यूज़ मत करना। एडमिट कार्ड लेके जाना, ID कार्ड लेके जाना, अपना जो भी है साथ में। बस दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट मेडिकोज एंड द डॉक्टर्स टू बी। आई होप आप सब अच्छे से पास हो, एंड मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काम आए। जो भी था मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला है, हो सकता है आपके कुछ अपने ख़यालात हो, वो आपके लिए सही हो सकती है। तो मैंने अपना परसेप्शन शेयर किया है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन जस्ट गो with whatever you want, and like this video if you genuinely felt that this will help you in your examination, and subscribe to the channel for more such videos. Jai Bharat. Thank you.